बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारा आज का मौजू है बिलीव इन द एंजल्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। बिलीव इन द एंजल्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला इज़ द वेरी सेकंड आर्टिकल ऑफ फेथ। ये ईमान के अज्जा में से दूसरा अहम जुज़ है और तौहीद पर ईमान लाने के बाद सबसे ज़रूरी है कि अल्लाह ताला के फरिश्तों पर ईमान लाया जाए। तौहीद इन एंजल्स में हम दर्ज झैल उन्वानात पढ़ेंगे। नंबर 1 सेकंड आर्टिकल ऑफ फेथ। नंबर 2 द एंजल्स, द नंबर ऑफ एंजल्स। नंबर 3 क्वालिटीज ऑफ एंजल्स। नंबर 4 टास्क्स ऑफ एंजल्स। नंबर 5 नेम ऑफ सम एंजल्स and number 6 a creature with no choice. This article of faith is very important and this is the concept which purifies the concept of Tawheed from all kinds of impurities. For example, the people who think or who associate the partners with the divinity of Allah subhanahu wa ta'ala, they think there are two type of creatures which are associated in the divinity of Allah subhanahu wa ta'ala. Number 1, the creatures who have some material existence like stars, moon, galaxies, earth, universe. They think that these are the things which have some divinity, which has some share in the divinity of Allah subhanahu wa ta'ala. The second type of thing which they share or associate in the divinity of Allah subhanahu wa ta'ala, they are imperceptible to the human eye. इंसान की आंख उन्हें नहीं देख सकती और वो ख्याल करते हैं शायद कि ये भी अल्लाह ताला के शरीक हैं और इस दुनिया के निज़ाम को चलाने में इनका भी कोई हिस्सा है। उनमें से सबसे अहम मलाइका हैं, फरिश्ते हैं। जैसे कि कुरान ने ये बयान किया है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं, ये वो मखलूक हैं जो दुनिया और कायनात के निज़ाम को चला रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तमाम फरिश्ते जो हैं ये अल्लाह ताला की नेक मखलूक हैं और जैसा कि कुरान के सियाक़ व सबाक़ से भी ज़ाहिर है। Prophet Muhammad ﷺ has informed us that these are the graceful, the respected and imperceptible spiritual beings of Allah subhanahu wa ta'ala, and human eye cannot perceive them. They are not in fact the associate or the partners in the divinity of Allah subhanahu wa ta'ala, but they are just the creatures of Allah subhanahu wa ta'ala. And the instinctive nature of these beings are different from the instinctive nature of human beings. They are the creation of Allah subhanahu wa ta'ala with no choice. They are the creation of Allah subhanahu wa ta'ala who obey the rules and the regulations and the orders of Allah subhanahu wa ta'ala according to the choice of the Lord. ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ताला ने जितना इनको इख्तियार दिया है, जितना अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया है, उसके मुताबिक ये अल्लाह ताला के कवानीन की पाबंदी करते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्तों को ये हुक्म दिया है कि वो बारिश बरसाएं। कुछ फरिश्ते अल्लाह ताला का तख्त थामे हुए हैं, तो ये काम वो अल्लाह ताला की मर्जी और हुक्म के मुताबिक करते हैं। Likewise, Allah ताला has ordered them to worship him. अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया है कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें। So they cannot deviate even a fraction or even an inch from the order of Allah subhanahu wa ta'ala. They have to obey the order of Allah subhanahu wa ta'ala as they are given this order by Allah Almighty. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam has forbade us to worship these angels. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया है कि हम उनकी इबादत करें।
या उनको खुदा की डिविनिटी में, खुदा की खुदाई में उनको शरीक करें. They are just the beings to carry out the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. For example, there are some angels who note and observe the actions of human beings. There are some angels who are responsible for blowing the surah in the day of judgment. There are some angels who are guarding over the hell. These are all the responsibilities of these angels which are given to them by Almighty Allah. And then an important thing about these angels, that we are not informed about the instinctive nature of these creatures. We just know that these creation is created by light. ये अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं, लेकिन इनका ज़ाहिरी वजूद कैसा है, वो देखने में कैसे हैं, क्या इंसान से वो मुशाबहत में मिलते जुलते हैं या नहीं, वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस थिंग. देन देयर आर सम एंजल्स हु कैन अडॉप्ट ह्यूमन फॉर्म, लाइक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम. This is known by a very famous hadith known as Hadith Jibreel alayhi salam. And we have no mean of knowing the nature of this creation of Allah subhanahu wa ta'ala except remaining in the context of Quran and the Sunnah. हमें इनकी नेचर के बारे में सिर्फ इतना ही मालूम है जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या फिर कुरान ने हमें आगाह कर दिया. इनके बारे में हम अपने पास से या अपनी तरफ से, जैसे इस्लामिक आर्ट में एंजल्स के पर बनाए जाते हैं, इसके बारे में हम कुछ यकीन से नहीं कह सकते. बट दीज आर द क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड द इंस्टिंक्टिव नेचर इज नोन बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला. वी जस्ट हैव टू फेथ ऑन दीज creation of Allah subhanahu wa ta'ala as they are depicted in the Holy Quran and the Sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. And there is an important thing to say that they are not divine or semi-divine things as we think. हमारा ख्याल है कि वो डिवाइन या सेमी डिवाइन टाइप की कोई चीज़ हैं और ह्यूमन बीइंग कैन सी देम और दे कैन कम in shape like this. This is not perceptible. This is not a relevant idea according to the context of Quran and Hadith. Now the number of the angels. The number of the angels is that they are uncountable. They are uncountable. How many they are, just Allah subhanahu wa ta'ala know. इनकी तादाद के बारे में कुछ भी यकीन से कहना मुश्किल है. फॉर एग्जाम्पल एक हदीस में आता है कि 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला के घर की इबादत करते हैं, खाना काबा के ऊपर तवाफ करते हैं और दे आर फॉलोड बाय अनदर ग्रुप and they cannot repeat this action in their whole life. 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला के घर की इबादत करते हैं और वहाँ तवाफ़ करते हैं एक दिन में, और उनकी बारी दोबारा नहीं आती और उनके बाद उनका एक और ग्रुप उन्हें फॉलो करता है. So it is very difficult to say something about the number of the angels. Then the qualities of angels. What are the qualities which these angels have? फरिश्तों को कुछ ख़ास पावर्स मिली हैं जो अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर उन्हें अता की हैं, जो ख़ास तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से
उनको दी गई हैं, इसमें उनका अपना जाती कोई कमाल नहीं। मसलन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के नबी ने जब उनकी असली हालत में देखा तो उनके पर थे, उनका दाहिना पर इतना बड़ा था कि पूरे मशरिक पे मुहित था। इसी तरह हदीस जिब्रील अलैहिस्सलाम से पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को उनका दीन सिखाने के लिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में दुनिया में तशरीफ़ लाए। इसी तरह वही के नुज़ूल के वक़्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत दाहिया कल्बी की शक्ल में दुनिया में मौजूद होते थे। इसी तरह मुख्तलिफ फरिश्तों की मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं। मसलन अल्लाह ताला ने जहन्नम के ऊपर एक फरिश्ते को गार्ड या मुहाफिज और निगरान बनाया है जिसका नाम है मालिक। इसी तरह इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो सूअर को फूंकेंगे क़यामत के दिन। चुनाचे एंजल्स की मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं जो मुख्तलिफ एंजल्स को अल्लाह ताला ने उनकी हैसियत और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली दी हैं। नाउ द टास्क्स ऑफ एंजल्स, what are the different tasks, what are the different responsibilities which Allah subhanahu wa ta'ala has awarded to these angels? वो कौन सी मुख्तलिफ जिम्मेदारियां हैं जो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को दी हैं। इन जिम्मेदारियों को जानने के लिए सबसे पहले इस बात का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि ये जो टास्क या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी गई हैं, these are given to them by Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala has given them these responsibilities, not that they are the divine creation and they are partners in the divinity of Allah subhanahu wa ta'ala. No, in fact they are the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala has given them these responsibilities by his own will. Number one. Number two, that they cannot deviate from these responsibilities. वो इन फरिश्ते इन जिम्मेदारियों से इनहिराफ नहीं कर सकते। They have to obey the orders as they are given this order. For example, Hazrat Jibreel alayhi salam was ordered by Allah subhanahu wa ta'ala to deliver the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala, so he obeyed this responsibility and he delivered the message of Allah subhanahu wa ta'ala as he was given this responsibility. Likewise, Munkar and Nakir are the two angels which are given the responsibility to ask some answers, and they are responsible for answering the human being in the grave. Likewise, Allah Ta'ala has some angels who are given the task of writing the good and the bad deeds of human beings, and they are known as the sacred scribers, Kiraman Katibin. Likewise, there are some angels who have been given the responsibility of safeguarding the human being. Likewise, some angels are, for example, Hazrat Ibrahim alayhi salam, the angels were used to come
to him in human form. Likewise, at the time of conception of Hazrat Maryam alayhi salam, angels came to him. Likewise, there are some angels who are responsible for rain. So there are different tasks awarded to them, and it is must to know that they are carrying out the duties given by the Lord, number one, and number two, that they cannot deviate from these obligations. And now the names of some angels. The name of some angels, for example, Hazrat Jibreel alayhi salam, Hazrat Mikail alayhi salam, Hazrat Israfil alayhi salam, इसी तरह मालिक उस फरिश्ते का नाम है जो गार्ड है दोज़ख का, और इसी तरह से मुख्तलिफ फरिश्ते हैं जिनके मुख्तलिफ नाम हैं। मुनकर और नकीर इनमें बहुत अहम हैं। किरामन कातिबीन जो इंसान के अमाल लिखने के ज़िम्मेदार हैं। मुख्तलिफ आयात से मुख्तलिफ अहादीस से फरिश्तों के मुख्तलिफ नाम मालूम होते हैं। Then the last point, which is that the angels are the creation of Allah subhanahu wa ta'ala with no choice. It is very important to know that the angels are the creation of Allah subhanahu wa ta'ala to whom Allah subhanahu wa ta'ala has not given any kind of choice. And the difference between a human being and an angel is that the human beings are the creation of Allah subhanahu wa ta'ala to whom Allah subhanahu wa ta'ala has given the respect, and to whom Allah subhanahu wa ta'ala has given the idea of choice. And when Allah subhanahu wa ta'ala has given him choice, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Balad, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, and we have shown the two paths to the human being. अल्लाह ताला ने इंसान को दोनों रास्ते दिखा दिए हैं, सीधा भी और गलत भी। और यही इंसान और फरिश्ते के दरमियान फ़र्क है कि फरिश्ता अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकता, जबकि इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है। वो अपनी मर्जी के मुताबिक हर काम कर सकता है, चाहे तो अल्लाह ताला की इबादत करे, चाहे तो अल्लाह की इबादत ना करे, चाहे तो नमाज पढ़े, चाहे तो नमाज ना पढ़े। अल्लाह ताला ने उसे दोनों रास्ते दिखा दिए हैं। अब ये उसका इख्तियार है कि वो किस हद तक उस पर अमल करता है, वो कौन से रास्ते पे चलता है, वो रास्ता जो सिराते मुस्तकीम है या वो रास्ता जो सिराते शैतान है। और शायद इसी तमीज की वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया वलकद करमना बनी आदम, और हमने बनी आदम को इज्जत और तकरीम अता की। इसलिए जब एक इंसान अपनी पसंद के मुताबिक, अपने इख्तियार के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत करता है और अल्लाह ताला के हुक्म की बजावरी करता है, तो अल्लाह ताला को वो इंसान बहुत महबूब होता है। इसी को किसी शायर ने कितने खूबसूरत पैराए में बयान किया कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। तो इसी इख्तियार के बायस जब अल्लाह ताला ने इंसान को ये इख्तियार दिया, अल्लाह ताला ने ये इंसान को फ्री चॉइस दी, तो अल्लाह ताला ने उस पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रख दी। और जब इंसान अपनी फ्री चॉइस के साथ, क्योंकि फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला की इबादत पे मामूर हैं,
they are ordered to worship Allah subhanahu wa ta'ala and they cannot deviate from this order. वो इस हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, and they cannot fatigued, they cannot bore, and they cannot get rid of out of this order. वो ना तो इस ऑर्डर से थकते हैं, ना उन्हें इससे परेशानी महसूस होती है, और ना ही वो इससे इनहराफ कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑर्डर टू डू दिस एज द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. लेकिन इंसान के लिए अल्लाह ताला ने कहीं ये मखसूस नहीं किया कि वो सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त बैठ के अल्लाह ताला की इबादत करे, बल्कि वो अपनी पसंद के मुताबिक जब चाहे अल्लाह ताला की इबादत कर सकता है. और इसी की वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और तकरीम दी. और जब एक इंसान अपनी पसंद और अपनी चॉइस और अपनी मर्ज़ी से अल्लाह ताला की ज़ात की इबादत करता है, तो अल्लाह ताला को वो इंसान फरिश्तों से ज़्यादा महबूब होता है. ईमान बिल मलाइका में एक और समझने वाली चीज़ ये भी है कि फरिश्तों की इबादत को अल्लाह ताला को फरिश्तों की इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है. They are obeying the orders of Allah subhanahu wa ta'ala as they are given this order. And Allah subhanahu wa ta'ala is not in need of their worship, but it is in fact a proof of the magnificence of the Creator, that Allah Ta'ala has created various type of creatures, and Allah Ta'ala has given them different orders, and this is the faith in the divinity of Allah Ta'ala, that he has created different type of creatures in this universe. ईमान बिन मलाइका के साथ एक और चीज़ जो अक्सर हमारे जहन में आती है वो है the concept of jinn in Islam. That what is the concept of jinn in Islam? Who are the jinns? What they do? Do they resemble the angels or they are different? तो जिन जो हैं वो भी अल्लाह ताला की मखलूक़ात में से एक मखलूक हैं. They are also imperceptible to the human eye. इंसान उन्हें देख नहीं सकता, जैसे अल्लाह ताला फिर इंसान फरिश्तों को नहीं देख सकता, वैसे ही इंसान जिन को नहीं देख सकता. But this is proved by the authentic narrations that they have the tribal system, they have their own social system, economic system, family system as the human beings have. जैसे इंसानों का एक सोशल सिस्टम होता है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है, फैमिली लाइफ होती है, बिल्कुल इसी तरह जिन्स में भी ये चीज़ें मौजूद होती हैं. And there is a confusion. Some people think that Satan was an angel. कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शैतान जो है वो भी एक फरिश्ता है, but this is not true. In the light of Quran, we can say that he was not an angel. He was not an angel, but he is a jinn. He was a jinn. For example, सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कान मिनल जिन्नी फफसक़ अन अम्रि रब्बिही. He was among the jinns and he disobeyed the order of Allah subhanahu wa ta'ala. So from the very text of Quran we can know that Satan, shaitan जो था, he was a jinn. वो jinn था, he was not a angel. This was all about the faith in the angels of Allah subhanahu wa ta'ala. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है believe
in the books of Allah subhanahu wa ta'ala. Believe in the books of Allah subhanahu wa ta'ala, because this is very important third article of faith. As a Muslim have to faith, Allah subhanahu wa ta'ala says, قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. So the third article of faith, ईमान का तीसरा जुज है अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताबों पर ईमान लाना। वो तमाम किताबें जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजी हैं उन पर ईमान लाना कि वो हिदायत और रोशनी का सरचश्मा है जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा। Now it is very important to know first of all that what is the difference between a book and a scripture. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the holy book that He has revealed books and He has also revealed scriptures to some of His prophets. For example, in Surah Allah subhanahu wa ta'ala says, Suhuf Ibrahim wa Musa, and we have revealed the scriptures to Ibrahim and Musa alayhi salam. So it means that there is some difference between a book and the scripture. Now what is the difference? The difference is that scripture is called Sahifa and book is called Kitab. Scripture is divided, or scripture is a form of some revealed or divine commandments. सुहुफ जिन अंबिया को दिए गए उसमें कुछ अहकामात, कुछ स्पेसिफिक टीचिंग्स और इंजंक्शंस अल्लाह ताला की तरफ से बयान किए गए हैं, जबकि किताब एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है. बुक इज़ अ कंप्लीट एंड कम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ लाइफ. स्क्रिप्चर में कुछ पर्टिकुलर अज्जा को, कुछ ख़ास अज्जा का जिक्र किया जाता है, जबकि किताब एक कम्प्रिहेंसिव, एक जामे ज़ाब्ता हयात होती है. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द बुक्स एंड द स्क्रिप्चर्स. एंड for example, Hazrat Musa alayhi salam was first of all given 10 commandments, then he was given on the mountain of Tur 40 commandments and a book also. And who were the prophets which were given the scriptures and who were the prophets which were given the books? It is different according to the context of Quran and the Sunnah. And then we will discuss the very important thing, that what are the differences between Quran and the other revealed books. First of all, the faith in the books of Allah subhanahu wa ta'ala. It is very important to know, and it is a must and obligatory for a Muslim to have a complete faith in the books of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala has revealed different types of books for the guidance of mankind, and according to different nations, according to different time of period, Allah subhanahu wa ta'ala has revealed different books, and these books were in fact a source of guidance for all the human beings, for the nations which were living at that time. And then Allah subhanahu wa ta'ala revealed a last divine message which is known as the Holy Quran. The famous 4 books which are known as the revealed books of Allah subhanahu wa ta'ala, they are Torah, which was revealed on Hazrat Musa alayhi salam, Zabur, or the Psalms of Hazrat Daud alayhi salam,
Injil or the Gospel which was revealed on Hazrat Isa alayhi salam, and the Quran, which is the holy book of Muslims and which was revealed on the heart of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and which is the last everlasting, universal, complete, comprehensive, divine word. Now, what are the differences between Quran and the other revealed books? The very first difference between the Quran and the other revealed books is that Quran is original in its form and words. Quran is original in its form and words. कुरान के जो अल्फाज हैं और कुरान अपनी हैसियत में एक असली और ओरिजिनल किताब है। यही वजह है कि 1400 साल गुजरने के बाद भी ये किताब आज अपनी असली हालत में मौजूद है और इस किताब में ज़ेर ज़बर पेश तक की कोई तब्दीली ना की गई थी, ना है और ना ही की जा सकेगी, because it is safeguarded by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says, "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun." And indeed, it is we who have revealed this reminder, and it is we who will safeguard it. So there is no change in this book, in any word, in any form of this book, and this book will remain as it is till the day of judgment, while the other books which are existing in the world's literature today they are translations. Most of these books are translations, and the followers of these books also admit that they are changed. They are changed. They say that the human word and the God word is mixed up and they are intermingled in such a way that it is very difficult to say that what is the human word and what is the divine word. And Quran also tells us that these books which are existing in the world today, they are changed, they are incorporated by the human beings. इंसानों ने उसमें तहरीफ व तब्दील कर दिया है, उसमें तहरीफ इस अंदाज से की गई है कि वो अब अपनी असल हालत में मौजूद नहीं हैं, और वो किताबें जो दुनिया के लिटरेचर में, दुनिया के अदब में आज मौजूद हैं, उनके बारे में ये यकीन से कहा जा सकता है कि ये वो किताबें नहीं हैं जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया था। उनकी उस हालत में और आज की हालत में बहुत फ़र्क है। Even a cursory study of the Gospel and the New Testament tells us that many things are changed in these books. And these books which are present today, most of these books are translations, not in their original form, while this is not the case with the Holy Book. The second difference between the Holy Quran and the other revealed books is that Holy Quran is an authentic word of Allah subhanahu wa ta'ala. It is an authentic divine word, जिसके बारे में हम अंधे एतमाद के साथ, अंधे यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये अल्लाह ही की नाजिल करदा किताब है, क्योंकि ये किताब एक मौजज़ा है। इस किताब की तरतीब में, इस किताब की नज़म में, इस
किताब की आयात में एक ख़ास तनासुब, एक ख़ास खूबसूरती, एक ख़ास मौज़ा पाया जाता है, जिससे ये साबित होता है कि ये किताब मुस्तनद किताब है। और इस किताब में ऐसे मोजज़ात पाए जाते हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये किसी इंसान की नाजिल करदा किताब नहीं है। और ये किताब एक डिवाइन वर्ड है, जबकि दूसरी किताबें जो दुनिया की लिटरेचर में आजकल मौजूद हैं उनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि दे आर अनऑथेंटिक, दे आर अनऑथेंटिक, दे आर नॉट द बुक्स which were original, and even the followers of these books, they say that these are not the authentic books. इन किताबों में कुछ ऐसे तजाद पाए जाते हैं, कुछ ऐसा इख्तलाफ पाया जाता है कि उसके अपने फॉलोअर्स का ये ख्याल है कि ये किताबें अथेंटिक और मुस्तनद नहीं हैं। The third difference between the Holy Quran and other revealed books is that Quran has a living language. कुरान की ज़ुबान एक जिंदा ज़ुबान है, और अगर आप दुनिया में देखें तो अरबी ज़ुबान को पढ़ने और समझने, अरबी ज़ुबान दुनिया की दूसरी बड़ी ज़ुबान है, दुनिया की दूसरी बड़ी ज़ुबान है, और इसको समझने वाले, इसको बोलने वाले दुनिया के हर खत्ते में मौजूद हैं। जबकि पुरानी किताबों की ज़ुबान जो है वो डेड लैंग्वेज है। अब हत्ता कि कोई ये भी नहीं जानता कि तौरात कौन सी ज़ुबान में नाजिल हुई, और इन ज़ुबानों को जानने वाले अगर हैं भी दुनिया में मौजूद तो बहुत कम तादाद में है। यही वजह है कि इनकी तालीमात में बहुत फ़र्क आ चुका है, लेकिन कुरान के साथ ऐसा मामला नहीं है। चौथा फ़र्क जो कुरान और दूसरी मजहबी किताबों में पाया जाता है वो ये है कि कुरान अपने पैगाम में और अपने वक्त के एतबार से एक दायमी किताब है। इसका मतलब यह है कि कुरान का मैसेज, कुरान का पैगाम जो है वो तमाम इंसानियत के लिए है, तमाम इंसानों के लिए है, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, चाहे ज्यू हैं, चाहे मुसलमान हैं। और कुरान का मुखातिब दुनिया का हर इंसान है, चाहे एक शख्स अफ्रीका में रह रहा है और चाहे एक शख्स पाकिस्तान में रह रहा है, चाहे एक शख्स अमेरिका में रह रहा है और चाहे वो दुनिया के किसी भी खत्ते में मौजूद है। कुरान उसका मुखातिब है, कुरान का पैगाम उसके लिए है। कुरान का पैगाम हमागीर है, आलमगीर है। जबकि पहली जो पाई जाने वाली किताबें थीं जो अल्लाह ताला ने नाजिल की, वो अल्लाह ताला ने किसी ख़ास कौम के लिए, किसी ख़ास आबादी के लिए, किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास कौम के लिए अल्लाह ताला ने नाजिल की। लेकिन कुरान का पैगाम ऐसा नहीं है। कुरान का पैगाम हर इंसान के लिए है, चाहे वो आज है, चाहे वो कल होगा, और चाहे वो आज से 1000 साल के बाद दुनिया में वजूद में आए और दुनिया में रह रहा हो। कुरान का पैगाम उन सब लोगों के लिए है। और दूसरी बात इसमें ये कि कुरान अपने वक्त के एतबार से भी दायमी है, आलमगीर है। कुरान के पैगाम पर आज भी अमल किया जा सकता है, कल भी अमल किया जा सकेगा, और आने वाले 1000 सालों में भी अमल किया जा सकेगा। But this was not the case with the other revealed books. Their message was particular and it was specific for some time, and then the other book came
and it abrogated the last one. जैसे एक नबी को नई किताब दी जाती तो बाद के आने वाले नबी पहले नबी की किताब को और उसकी शरीयत को ख़त्म कर देता, लेकिन ये मामला कुरान के साथ नहीं है। कुरान का पैगाम दायमी है, हमागीर है, आलमगीर है, आने वाले वक्त के लिए रहेगा। और आज से 1000 साल के बाद भी अगर कोई शख्स रहनुमाई हासिल करना चाहता है तो कुरान उसके लिए हिदायत का सरचश्मा है। और ये किसी खास कौम, किसी खास जेनरेशन, किसी खास नस्ल के लिए नहीं है, बल्कि इसका पैगाम तमाम इंसानियत के लिए आम है। और आखिरी फ़र्क जो कुरान और दूसरी मज़ाहिब की नाज़िल शुदा किताबों में पाया जाता है वो ये है कि कुरान इज़ अ कंप्लीट एंड कम्प्रिहेंसिव डिवाइन कोड। कुरान एक जामे, एक मुकम्मल ज़ाबता हयात है। कुरान में हर किस्म की पर्टिकुलर और हर किस्म की स्पेसिफिक इंजंक्शन और टीचिंग्स मौजूद हैं। कुरान की हिदायत जामे है, हर इंसान के लिए है, जबकि पहली नाज़िल शुदा किताबें कंप्लीट नहीं थीं। उनमें किसी किताब में कोई चीज़ तो मौजूद थी और कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। कुछ अहकामात मौजूद थे और वो किताबें कुछ अहकामात से खाली थीं, लेकिन कुरान के साथ ये केस नहीं है। कुरान में हर किस्म की रहनुमाई, हर किस्म की हिदायत, चाहे उसका ताल्लुक इंसान की सोशल लाइफ से हो, चाहे उसका ताल्लुक इंसान की इकोनॉमिक लाइफ से हो, चाहे उसका ताल्लुक इंसान की फैमिली लाइफ से हो, चाहे उसका ताल्लुक पॉलिटिकल लाइफ से हो, हर किस्म की हिदायत और रहनुमाई कुरान के अंदर मौजूद है। और इसमें तमाम किस्म के उसूल और ज़वाबित बयान कर दिए गए हैं। और कुरान के बारे में ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि कुरान जुज़ियात की किताब नहीं है, कुरान कुल्लियात की किताब है। It is the book of principles and it is the book of common and general principles and general injunctions and teachings. It is a book of general injunctions. इसमें जुज़ियात, स्पेसिफिक और पर्टिकुलर टीचिंग्स नहीं बताएगी, लेकिन कुरान की कुछ टीचिंग्स ऐसी हैं which are very particular and which are very specific. So we can say that it is a guidance and it is a complete code of life. It is a comprehensive code of life which provide its guidance in whole aspects of a human being's life. Now, what are the different components of the faith of the faith in books of Allah subhanahu wa ta'ala? Number one, that Allah subhanahu wa ta'ala has revealed different books in different times according to different nations for their guidance. Allah subhanahu wa ta'ala has not left the human being going astray. अल्लाह ताला ने इंसान की रुश्द और हिदायत का पूरा बंदोबस्त किया है और मुख्तलिफ वक्त और मुख्तलिफ टाइम के मुताबिक अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की हिदायत के लिए किताबें नाजिल की हैं। 4 मशहूर किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक हैं एंड दे आर रिवील्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। Number 3, we cannot say something with a strong faith that what their position is, but in fact these all books are true and these are revealed by Allah subhanahu wa ta'ala. And number 4, we have faith. तीसरा ये है कि हमारा इस चीज़ पर एतमाद है, यकीन है कि वो चाहे अब जिस भी सूरत में मौजूद हैं लेकिन वो तमाम सच्ची किताबें हैं, बिकॉज इसलिए कि वो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा हैं। और चौथा ये कि जैसा कि कुरान ने बताया कि
फेथ इन बुक्स का ये हिस्सा है, ईमान बिल कुतुब का ये हिस्सा है कि वो किताबें जो अल्लाह ताला ने इंसान की रुश्द व हिदायत के लिए नाजिल की हैं, अब वो अपनी असली हैसियत में मौजूद नहीं हैं, अपनी असल हालत में वो मौजूद नहीं हैं, और उसमें तहरीफ और तब्दील इस कदर हो चुका है कि उसको जानना और पहचाना मुश्किल है कि क्या इसमें इंसानी कलमा है और क्या उसमें डिवाइन कलमा है, क्या उसमें अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया और क्या उसमें इंसान ने शामिल किया। चुनाचे ये 4 अहम अज्जा हैं ईमान बिल कुतुब के। ये तो था अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताबों पर ईमान। इसके बाद अगला जो हमारा ईमान है वो है ईमान बिर रसूल, ईमान बिर रसूल, faith and the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, in which we will discuss these following points. Number 1, differences between Nabi and Rasul. Number 2, differences between Prophet Muhammad, peace be upon him, and other prophets. Number 3, the finality of prophethood, and the finality of prophethood. सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि एक नबी और रसूल में क्या फर्क है, एक नबी और रसूल में क्या फर्क है, क्योंकि कुरान ने कुछ अंबिया को नबी कहा है और कुछ अंबिया को रसूल कहा है। अगर हम दोनों अल्फाज के अरबी माखज़ पे जाएं तो किसी हद तक हमें बात समझ आती है। लफ्ज़ नबी नबा से निकला है और लफ्ज़ रसूल रसाला से निकला है। नबा का मतलब है खबर देने वाला, यानी कि पैगंबर, मैसेंजर, और रसूल का लफ्ज़ रसाला से निकला है और रसाला का मतलब है पहुंचाने वाला, and that is the prophet. And in fact these two words are very close to each other. Rasul is the person who is given a book by Allah subhanahu wa ta'ala. He establishes a new code of life. उसकी अपनी शरीयत होती है, उसको अल्लाह ताला एक ख़ास किताब देता है। जबकि नबी का क्या काम है, उस रसूल की शरीयत पर अमल करवाना जिसको अल्लाह ताला ने किताब दिया है। एक ही वक्त में एक से ज़्यादा अंबिया हो सकते हैं, लेकिन एक वक्त में एक से ज़्यादा रसूल नहीं हो सकते। तमाम जो रसूल हैं वो अंबिया हैं, लेकिन तमाम अंबिया जो हैं वो रसूल नहीं हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी ने बहुत खूबसूरती से अपनी किताब मफातिहुल गैब में रसूल और नबी के फ़र्क को बयान किया है। वो कहते हैं the differences between a rasul and a nabi. A rasul is one who has performed miracles and has received a new divine book. नंबर 1 तो ये कि रसूल मोजा दिखाते हैं, और नंबर 2 ये कि अल्लाह ताला ने उनको एक डिवाइन बुक दी है। He establishes a new code of law and sharia. वो एक नई शरिया को चलाने वाले हैं, एक नई शरिया पर अमल करवाने वाले हैं। हर रसूल को अल्लाह ताला ने एक नई शरीयत दी है। एंड ही abrogates the previous code of law and book. हर रसूल को जो किताब दी जाती है उस किताब पर उसके ज़माने में अमल करना ज़रूरी है, और वो उसकी जो किताब और शरीयत है वो पुरानी शरीयतों को और पुरानी किताबों को ख़त्म कर देती है।
और फिर उन्होंने कुछ अपने पास से मजीद इजाफा किया और वो कहते हैं ही हैज ऑल्सो विजिबली सीन द एंजल दैट कम्स विद द डिवाइन मैसेज। रसूल जो है वो एंजल्स को देख सकते हैं एंड द रसूल इज कमांडेड टू इनवाइट द पीपल टूवर्ड्स द दीन। रसूल की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को दीन की तरफ बुलाएं। These are the three differences between the main three differences between Rasul and Nabi is that Rasul performs miracle, वो मौजे दिखाते हैं। नंबर 2, उनको एक डिवाइन शरिया, डिवाइन कोड और एक डिवाइन बुक मिलती है। और नंबर 3, उनका काम है लोगों को उस शरीयत के मुताबिक अमल करवाना, और जब वो शरीयत उन्हें दी जाती है तो उनसे पहले वाली शरीयत खत्म हो जाती है। नबी is one who is not given a book। नबी वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने कोई किताब नहीं दी, but rather establishes the book which was revealed to the prophet, which was revealed to the Rasul before him। उनकी नबी की जिम्मेदारी ये है कि उनसे पहले जो रसूल को अल्लाह ताला ने जो किताब दी है उस पर अमल करवाना। He does not abrogate the books and the code of law which was invoked before him। He sees the angel in a dream, or the Rasul of that time informs him that he has been chosen as a नबी। नबी जो हैं वो एंजल्स को नहीं देख सकते, वो फरिश्तों को नहीं देख सकते, और उनके टाइम से पहले जो नबी गुजर चुके हैं उन्होंने उनकी शरीयत पर अमल करवाना है। और नंबर 3 ये कि उस वक्त का रसूल जो है वो उन्हें बताता है कि आपको अल्लाह ताला ने नबी मबूस किया है। मिसाल के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताब दी और वो एक रसूल हैं, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब वो अल्लाह ताला से कोहे तूर पर मुलाकात के लिए गए तो उन्हीं के ज़माने में अल्लाह ताला ने उनके बड़े भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी मुकर्रर किया, और उनका काम क्या था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल करवाना। चुनाचे इस सियाक में अगर हम देखें तो हमें बहुत आसानी से समझ आ सकता है कि एक नबी और रसूल में क्या फ़र्क है। Now, what is the concept of Muslims? What is the concept of faith in the book, in the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala? अल्लाह ताला के रसूलों पर ईमान लाना क्या है? नंबर 1, मुसलमानों का अकीदा है, सबसे अहम अकीदा रसूलों के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू तआला सेज इन सूरह अल-बकरा, the last verses of Surah Al-Baqarah, ला नुफर्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि वक़ालू समिअना व अतअना। That the Muslims have faith, that they say that we don't differentiate between any of the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, and we say to all of them that we are hearing and we are obeying their rules, their religion. इसका मतलब यह है कि मुसलमान अल्लाह ताला के रसूलों में किसी के बारे में फ़र्क नहीं करते, तमाम पर एक जैसा और कामिल ईमान रखते हैं। They have faith that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen some people among the human beings for His divine message and for the preaching of their religion, of His religion. अल्लाह ताला ने अपने दीन की तरफ रहनुमाई के लिए और दीन को फैलाने के लिए इंसानों की हिदायत का बंदोबस्त फरमाया, और उसके लिए अल्लाह ताला ने कुछ रसूलों को चुना, और यही वो रसूल थे जो अल्लाह ताला की तरफ से मुंतखब करदा थे। और मुसलमानों का ये अकीदा है that they don't differentiate between the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. They have faith in all the prophets, whether they were revealed to the Jews, whether they were revealed to the Christians, and whether they were revealed to any of the nations of Allah subhanahu wa ta'ala. But Muslims have faith that we don't differentiate between them. They were all the noble personalities, respected personalities, and they were all the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala.
This is the one thing. Number two thing is that if a Muslim deny faith in any of the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, it means that he is denying all the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. अगर कोई मुसलमान किसी एक नबी का इनकार कर दे, मसलन वो कहे कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान नहीं लाता, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे, या वो ये कहे कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाता, तो इसका मतलब है ही इज अ काफिर, वो काफिर है, वो इस्लाम के दायरे कार से निकल जाता है। एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह ताला के तमाम अंबिया पर ईमान लाए। एक मुसलमान अगर किसी एक नबी का इनकार करता है तो वो कैसे काफिर होता है? मसलन 10 people makes one statement, 10 people make one statement, and if someone rejects one of them, it means that he is rejecting all of them. अगर 10 लोग किसी एक ही बात को कर रहे हैं और मैं उन 10 में से किसी एक को कहती हूँ कि आप गलत कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने उन 10 का इनकार कर दिया। चुनाचे इसी तरह अगर मुसलमान किसी एक प्रॉफिट पर, किसी एक नबी पर ईमान नहीं लाते, तो इट मीन्स he is a kafir and he is rejecting all the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because all the prophets were chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. They were selected by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ने खुद मुंतखब किया, and the main injunctions, the main teachings of all the prophets were same. वो दीन या वो तालीमात जिनकी तरफ तमाम अंबिया ने रहनुमाई फरमाई वो सेम थे। मसलन तौहीद का हुक्म जो है वो तमाम अंबिया ने और तमाम मज़ाहिब में मुश्तरक था। Now what is the number of these prophets? In fact, we cannot say something with a strengthened faith that Allah subhanahu wa ta'ala has revealed so and so prophets. हम यकीन से नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कितने अंबिया को मबूस फरमाया, लेकिन एक ट्रेडिशन से पता चलता है, एक रफ सा आइडिया है कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में भेजा। Some of them were messengers and some of them were prophets. Some of prophets of Allah are mentioned in the holy book. कुछ अंबिया रसूल ऐसे हैं जिनका अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र फरमाया, and there are some who are not mentioned in the Holy Quran and they are mentioned in Hadith, and there are some prophets of Allah whose names are not mentioned, not in Holy Quran and not in Hadith, but as they are revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala ने उन्हें नाजिल किया, Allah ta'ala ने उन्हें भेजा, so we have faith that they are all the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. Now the differences between the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and other prophets. What is the difference between the prophecy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the prophecy of other prophets? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने में बाकी अंबिया के नबी होने में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो ये यकीन रखना और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तमाम अंबिया अल्लाह ताला की तरफ से मबूस फरमाए गए हैं और तमाम अल्लाह ताला के
मुंतखब करदा लोग हैं, ये बहुत ज़रूरी है और ये एक मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन कहा है। अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन हैं। चुनाचे ऐसी कौन सी प्रायोरिटीज हैं, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंस है उनकी प्रोफेसी में जो बाकी अंबिया की प्रोफेसी में नहीं है। नंबर वन, the prophets of past, they came in this world, they came in this universe with the divine message of Allah subhanahu wa ta'ala, but their message was for particular time and for particular nations. उन अंबिया की जो तालीमात थी वो किसी ख़ास वक्त के लिए और किसी ख़ास कौम के लिए थी। इसलिए उन अंबिया की तालीमात, उनका पैगाम, उनका लाया हुआ मज़हब एक ख़ास वक्त के बाद ख़त्म हो गया। बट दिस इज़ नॉट केस विद द प्रोफेसी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के साथ ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज, उनका पैगाम, उनका लाया हुआ दीन, that is for all the human beings, that is universal and that is for all the time to come, and that is not specific, that is not particular for some generation, for some race or for some nation. That is a universal message. Number two, the teachings of those prophets have either disappeared altogether from the world or whatever to them remain is not pure. दूसरा फ़र्क नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में और बाकी अंबिया की नबूवत में ये है कि वो पैगाम जो पिछले अंबिया को दिया गया या तो वो ख़त्म हो गया और या फिर वो अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। बट दिस इज़ नॉट द केस विद द प्रोफेसी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लाया हुआ आज भी वैसे ही है जैसे 1400 साल पहले था और आज से 1000 साल के बाद भी वैसा ही रहेगा जैसा आज है। और उनके लाए हुए दीन में, उनके लाए हुए पैगाम में किसी किस्म की कोई तहरीफ और तब्दील नहीं हो सकती। And another thing that the message of the past prophets was not so much comprehensive, it was not in its complete form. And the divine message of Prophet Muhammad has completed all those teachings, all those injunctions of the previous prophets. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन ने बाकी अंबिया के दीन को मुकम्मल किया, because it is a sort of witness over the teachings of other prophets. And the third difference between the prophecy of Prophet Muhammad ﷺ and the prophets and the other prophets is that the teachings of coming prophet abrogated the teachings of last prophet. बाद के आने वाले अंबिया ने पहले अंबिया के पैगाम को, उनकी टीचिंग्स को, उनकी नबूवत को ख़त्म कर दिया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जो है वो आने वाले वक्तों के लिए, आने वाले इंसानों के लिए, हमेशा के लिए रहने वाली है। The teachings of Prophet Muhammad is everlasting and they will remain in this world till the day of judgment. And it is not specific for his teachings to remain in some particular nation in some particular time of period.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क़यामत के दिन तक रहने वाली हैं। और इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि एक इंसान है, अल्लाह ताला ने एक इंसान बनाया और उस इंसान ने एक बहुत खूबसूरत घर बनाया और उस घर को खूबसूरत बनाने के बाद मुकम्मल किया और उसमें एक ईंट दीवार में एक जगह रहने दी, यानी तमाम घर को मुकम्मल कर दिया, सिर्फ एक ईंट की जगह रहने दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वो ईंट हूँ, मैंने उसको ख़त्म किया है, उस घर को, उस इमारत को, उन तमाम तालीमात को ख़त्म किया है, मैं उसकी इंतहा हूँ। एंड आई हैव कंप्लीटेड एंड आई एम विटनेस ओवर द टीचिंग्स ऑफ द पास्ट प्रॉफिट्स। उनको एक कंप्रिहेंसिव अंदाज में, एक जामे अंदाज में जब अल्लाह ताला ने अपना डिवाइन मैसेज पहुंचाया, दैट वाज इन द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। So it is obligatory, it is a must for the people who want to enter in the circle of Islam to have a complete faith in the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and to obey and to follow the teachings of Islam and the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. If a person, he enters in the circle of Islam and he says that I will obey and I will follow the teachings of Hazrat Isa alayhi salam or I will follow the teachings of Hazrat Musa alayhi salam, we will say no, sorry. If you want to enter in the circle of Islam, it is must for you to follow and to obey the teachings of Islam and the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because it has abrogated the previous sharias. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलीजन ने, दीन ने बाकी शरीयतों को ख़त्म कर दिया। चुनाचे अब अगर कोई शख्स इस्लाम पर अमल करना चाहता है या इस्लाम के दायरे में शामिल होना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को फॉलो करे। So these are some important specialities of the prophecy of Prophet Muhammad, peace be upon him. Now, what is the meaning of finality of prophethood? Finality of prophethood means that the chain of prophets is final on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is great, he is last, he is final in the chains of prophets, and he has completed, he has comprehended, and he has ended the teachings of old prophets. जैसा कि कुरान ने बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल और खातिमुन नबीयीन हैं। इसका मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। चुनाचे फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड का मतलब है इस चीज पर यकीन रखना, इस चीज पर एतमाद रखना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और उन पर आकर नबूवत का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अब उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, नंबर एक। नंबर दो, उनकी तालीमात, उनका लाया हुआ दीन हमेशा हमेशा के लिए काबिल अमल और दायमी है। उनके बाद या उनके दीन की मौजूदगी में किसी और के दीन पर अमल नहीं किया जाएगा। वो अंबिया में सबसे आखिरी हैं। और नंबर तीन, इस बात पर ईमान लाना कि उनका लाया हुआ दीन मुकम्मल है, उनका लाया हुआ दीन कामिल है और किसी गलती और किसी एरर से पाक है। और
इस चीज़ पर ईमान लाना कि वो अल्लाह ताला के सही और सच्चे पैगंबर हैं, सही और सच्चे रसूल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमुन नबीयीन होने के लिए इन 3 चीज़ों पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। कौन सी 3 चीज़ें? नंबर 1, दैट ही इज़ द ट्रू prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, his teachings are perfect, they are comprehensive, and they are everlasting, and they are free from any kind of error, and they are perfect in all the aspects. And number 3, that no prophet will come till the day of judgment. The final message, the final religion, the final teachings, the final Sharia which will remain till the day of judgment, that is the Sharia of Prophet Muhammad, peace be upon him. And till the day of judgment, if someone wants to enter in the circle of Islam, it is must to have an implicit and blind faith in the prophecy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. These are the demands or the requirements to have faith in the faith of Khatimun Nabiyyin. अब यहाँ से हमारे जहन में एक सवाल आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी तो दुनिया में आएंगे और वो भी अल्लाह के नबी हैं, तो ये क्या? हमने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं होगा, और साथ ही हमने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे। और दूसरा ये कि इमाम महदी जो दुनिया में आएंगे, उन्होंने भी तो दुनिया में आना है और क़यामत की निशानियों में से एक है कि वो भी दुनिया में आएंगे, तो उनका क्या केस है? ही इज़ अ प्रॉफिट और ही इज़ अ मैन, और व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ हज़रत इमाम महदी? If we see this thing in the context of Quran and Sunnah, we will come to know हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला दुनिया में वापस भेजेंगे और वो दुनिया में वापस आएंगे, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बन के आएंगे। In his own time of period he was a prophet. अपने वक्त में, अपने ज़माने में तो वो प्रॉफिट थे, अल्लाह ताला के पैगंबर थे, अल्लाह ताला के नबी थे, लेकिन जब अल्लाह ताला उन्हें दोबारा मबूस फरमाएगा तो वो एक प्रॉफिट नहीं होंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बन के आएंगे। एंड इट विल बी ऑब्लिगेटरी ऑन हिम टू फॉलो द शरिया ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। उनके लिए ये ज़रूरी होगा, उन पे ये लाजिम होगा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरिया ही को फॉलो करें। ये तो था मामला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। अब इमाम महदी जो हैं, उनके बारे में मुसलमानों का ये पुख्ता यकीन है और ईमान है दैट ही इज़ नॉट अ प्रॉफिट, ही इज़ नॉट अ प्रॉफिट। वो अल्लाह ताला के नबी नहीं हैं, अल्लाह के रसूल नहीं है, लेकिन ही इज़ अ गुड मैन एंड ही इज़ एन इमाम, और वो अल्लाह ताला के एक नेक बंदे होंगे, इंसान होंगे जो दुनिया में अमन कायम करेंगे और दुनिया में लोगों को आसानियाँ और सहूलतें फराहम करेंगे और दुनिया में अमन और सलामती की फ़िज़ा को कायम करेंगे। लेकिन ही इज़ नॉट अ प्रॉफिट, वो नबी नहीं होंगे, वो सिर्फ एक इंसान होंगे। चुनाचे हम ये कह सकते हैं कि बाकी रहने वाली शरीयत, क़यामत के दिन तक अमल की जाने वाली शरीयत और ता क़यामत कायम रहने वाला, बाकी रहने वाला और वो मज़हब या दीन जिसकी तालीमात आखिरत तक मौजूद रहेंगे, दैट इज़ ओनली द रिलीजन एंड द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड he is the seal of prophet and he is the last in the chain of prophets. May Allah be pleased with him. यहाँ पर आकर हमारा ईमान बिरसुल ख़त्म हुआ। इसके बाद
हम पढ़ेंगे ईमान बिल आखिरत और ईमान बिल क़द्र। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।